Yes, so today we are going to discuss the topic land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In previous topic, you have studied about resources. Only resources you have studied about? Okay. And what do you mean by resources? Raise your hand. Yes, beta. The things we need for our daily use in our life. So they are resources, and all these words that we have written: land, soil, water, natural vegetation and wildlife. These all are natural resources. ये सारे natural resources हैं, ठीक है? So we will discuss all these natural resources in brief. सारे resources हमारे लिए useful है. What is resource? Resource word हमने इसके साथ लिखा है. Resource mean all they are useful to us. We are using this in our daily life. हम इनको यूज कर रहे हैं. तो वन बाय वन हम इन सबको स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लैंड रिसोर्स. ठीक है? एंड इन लैंड देयर इज वन स्टोरी गिवन इन योर बुक. You can start two stories are very short stories. One is of Mamba and second is of Peter. ठीक है? And in the small village Tanzania, Africa. Tanzania is in Africa. And then Mamba, she gets up very early in the morning. And why she gets up very early? To get the fetch the water. ठीक है? Because the water is not available to them. ठीक है? वहां पे water available नहीं था. She has to work. उसको बहुत काम भी करना पड़ता, बहुत long way. And when she returns, then she also help her mother in house. अपने mother की भी help करती थी in house. Then अपने brother की भी help करती थी in taking care of their goats. And her family, they were also having a small piece of land, but they were living in a rocky place. ठीक है? वहां पे rocky area था. So that is why instead of doing so much hard work, the produce from the land that was not sufficient for all of them. ठीक है? So that was not enough to feed their family for whole year. इतना भी वो, क्योंकि rocky surface था, उसमें वो बहुत हार्ड वर्क करके करते भी थे एग्रीकल्चर, बट दैट वाज नॉट इनफ टू मीट देयर बेसिक नीड्स आल्सो. ठीक है? सो दिस इज वन स्टोरी. दिस इज फ्रॉम अफ्रीका. एंड द सेकंड स्टोरी, इट इज फ्रॉम द पीटर हु लिव्स इन द हार्ट ऑफ शीप रियरिंग रीजन. मतलब जो शीप रियरिंग रीजन है, कहाँ पे है? इन न्यूजीलैंड, जहाँ पे इसकी हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. मतलब उसकी फैमिली की ही अपने एक वूल, क्योंकि वो रीजन ही ऐसा है जहाँ पे कि बहुत शीप रियरिंग होती है, तो उनकी अपनी एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी है वहां पे. एंड एवरी डे व्हेन पीटर रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल, ही वॉचेस हिज अंकल. उसके अंकल दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप्स एंड देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड. मतलब बहुत उनकी कंडीशन अच्छी है. ठीक है? शीप रियर भी कर रहे हैं. एंड दे आर ऑल्सो हैविंग ए प्लेन एरिया. उनके पास एक हिल्स पे प्लेन एरिया भी है जहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते हैं, और वहां से भी वो साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं. वहां पे दे आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. दे आर ऑल्सो ग्रोइंग सम वेजिटेबल्स साइड बाय साइड. ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स द लाइफ ऑफ दीज टू चिल्ड्रन दे इज क्वाइट डिफरेंट. और इस डिफरेंस में कहीं ना कहीं, जैसे इफ दे आर ऑल्सो डूइंग एग्रीकल्चर, Member's family and this Peter's family, they are also doing agriculture. Both are doing agriculture, and they are sheep. They rear sheep and they are rearing goats. Okay, so it means their family, the life and the livelihood of their family, it depends on the natural surroundings also. Okay, natural surrounding पे भी use है. So Member and Peter, they are staying in two different parts of the world. One in New Zealand and the other one is in Africa. And their lives is very different. Both of their lives, उनकी life भी बहुत different है. And this difference is because of the quality. अब ये difference क्यों है? Quality of land. Quality of land किस पे effect डाल रही थी? उनकी जो agriculture produce था, उस पे effect डाल रही थी. Then the soil, water, how much water is available? Because Mamba was going to large distance to fetch water. She was also going because availability of water. Then the natural vegetation, animals,
which are available in their region, and usage of technology, because Peter's family, they were using technology, scientific technology for agriculture, but the Memba's family, they were not using. Okay, so all this is, there is difference of all these things, and availability of such resources is the main reason for difference in both of their lives. अब दोनों की लाइफ में डिफरेंस किसका था? टेक्नोलॉजी, सॉइल, एनिमल्स, लैंड, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन। अब इसी में तो मेन हम कि मतलब वहां पे लैंड रॉकी थी अवेलेबल, वहां पे लैंड कैसी थी? हिल के ऊपर थी, प्लेन एरिया था, काफी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते थे, वो टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थी उनकी डिफरेंट में। अब इसी में ही हम इसमें क्या आगे, बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स आगे, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, इस छोटी सी स्टोरी में, जो कि उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में फिर हम लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं पहले, कि एक तो लैंड, जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, सबसे इंपॉर्टेंट लैंड है, ठीक है। ऑन आवर अर्थ वी आर ऑल्सो लिविंग ऑन लैंड, और हमारी जितनी भी जरूरतें हैं मोस्टली लैंड से ही फुलफिल होती हैं, मोस्टली लैंड रिसोर्स से ही कंप्लीट होती है हमारी जितनी भी जरूरतें हैं। वी आर लिविंग ऑन दिस लैंड, whatever we need, all the needs, we need food, we need shelter to live, ठीक है, then all these needs they are fulfilled from this land area only, ठीक है। so land is among the most important natural resource, और हमारी अर्थ के ऊपर लैंड कवर कितना है? how much land cover is there? 29%, and अगर हम उस 29% का 100% निकाले तो on that 29% एरिया that is available to us, उस पे भी हम सिर्फ 30% लैंड पर ही जो है यूज कर रहे हैं, जो हम थिकली पॉपुलेशन है, ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन है, that is only on the 30% of the land। अब अगर हम पूरे जो भी हमारे पास लैंड एरिया अवेलेबल है उसको हमने 100% में डिवाइड कर दिया है, तो 30% जो लैंड एरिया है उस पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है? 30% लैंड एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है? 90%, ठीक है। और जो बाकी 70% लैंड एरिया बच गया उस पे सिर्फ 10% पॉपुलेशन रह रही है। 90% of world population occupies only 30%, and remaining 70% is either sparsely populated or inhabited। तो बाकी जो एरिया बचता है, ठीक है, तो वहां पे लोग क्या है, यहाँ तो स्पार्सली पॉपुलेटेड, यहाँ पे क्या है, अब इतने से एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, सो दे आर थिकली पॉपुलेटेड एरिया एंड दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। Sparsely means if one family is living here, if you will on mountainous area, one family is living here, other family is living, you have to walk even long distances, you are not having the transportation facilities proper, so they are sparsely populated। Sparsely means at a distance, कि बिखर बिखर के वहां पे लोग रह रहे हैं। Thickly populated कि वो सारे, जैसे अभी तो फ्लैट्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, है ना, कि जगह की लैंड की अवेलेबिलिटी इतनी कम है। So this is the reason. So it covers only 30% of the total area of Earth's surface, whatever land we are having, and all the parts of the small percentage are not habitable। क्यों? क्योंकि जितना भी land area हमारे पास है, 29% of the land area is on Earth, and all land is not in habitable। Why? सारी land habitable नहीं है, क्यों नहीं है? Raise your hand. Raise your hand, बेटा, बैठ के आंसर दे दो। Yes, in previous class you have read about different regions, ठीक है। If there is desert, whether it is cold desert, hot desert, the habitation is not possible। If some people are living, it is quite sparsely populated, ठीक है। Where there is more population, in the fertile plain areas, प्लेन एरियाज में होती है ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। एंड यू हैव रेड अबाउट इन प्रीवियस क्लास अबाउट गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड सेकेंड अमेजोन बेसिन,
है ना, वहां पे क्या थी, ज्यादा पॉपुलेशन थी। क्यों थी? क्योंकि वो प्लेन एरिया था, और प्लेन एरिया में पॉपुलेशन क्यों होती है? बिकॉज मेनी फैसिलिटीज कैन बी अवेलेबल इन प्लेन एरिया। ठीक है, सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ड्यू टू द वेराइड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो हो गया ना लैंड एरिया। अब ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अनइवन। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज मेनली ड्यू टू वेराइड कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड एंड क्लाइमेट। एक तो लैंड का रिलीफ वहां पे कैसा है, उस पर डिपेंड किया, वेदर द एरिया इज माउंटेनियस, वेदर द एरिया इज डेजर्ट। ठीक है, प्लेन एरिया है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। तो एक तो ये, और दूसरा वहां की क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट सुटेबल है तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, अगर क्लाइमेट सुटेबल नहीं है तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं। टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, एक तो लैंड, सेकेंड क्लाइमेट। तो अब हम किसके बारे में कर रहे हैं? सिर्फ लैंड के बारे में। सो कौन कौन से रीजन है कि वहां पे जैसे ये जो 70% है यहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेशन है। एक तो रग्ड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी उनका रिलीफ फीचर कैसा है? इवन नहीं है, अनइवन है। ठीक है, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन में स्टीप स्लोप्स है, वहां पे ना एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ना प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो वो भी हमारे यूजेबल नहीं है एरिया। लो लाइंग एरियाज सॉरी इट इज susceptible, sorry ये word, yes, susceptible to water and logging। अगर कोई ज्यादा लो एरिया है तो वहां पे क्या होगा? वाटर लॉगिंग हो जाएगी। अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं होगी, वहां पे भी पॉपुलेशन नहीं होगी। देन डेजर्ट एरियाज, थिकली फॉरेस्ट एरियाज, अगर कुछ फॉरेस्ट एरियाज है तो वहां पे भी नहीं होगी। ठीक है, एंड दीज ऑल एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो इसीलिए ये एरियाज क्या होते हैं? स्पार्सली पॉपुलेटेड है या इनहैबिटेड है, या लोग रहते ही नहीं है। अगर कुछ रहते भी हैं ड्यू टू द एनी रीजन तो वो क्या है? बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है। एंड देन द प्लेन एंड रिवर वैलीज। अब जो प्लेन और रिवर वैलीज है वहां पे क्या होता है? दे आर पॉपुलेशन इज यस डेंस पॉपुलेशन और थिकली पॉपुलेटेड। अब नेक्स्ट इसमें है लैंड यूज, कि लैंड यूज कैसे होती है, फॉर विच पर्पसेस द लैंड इज यूज्ड, व्हाट आर द वेरियस पर्पसेस? रेज योर हैंड। यस आरिश। यस, so different purposes, whatever we use for our life, agriculture, industry, transportation, ठीक है, mining, so whatever are our uses, जो भी हम, अगर आप अपनी लाइफ में देख लो कि हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फूड की जरूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री फॉर डिफरेंट थिंग्स, मेडिसिन, ठीक है, देन माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेज, रोड्स एक्सेट्रा, सभी कुछ। तो ऑल दीज आर वेरियस यूजेस ऑफ लैंड। तो इन सभी को इकट्ठा हम क्या नाम दे देते हैं? लैंड यूज। फॉर ऑल द वेरियस यूजेस दैट फॉर विच वी यूज आवर लैंड, सो देन वन टर्म दैट इज गिवन टू ऑल द यूजेस इज लैंड यूज। ठीक है, सो लैंड यूज, अब लैंड यूज भी किस पे डिपेंड करेगा? ये भी डिपेंड करेगा कि व्हाट, हाउ इज द टोपोग्राफी, हाउ इज द रिलीफ फीचर्स। ठीक है, फिजिकल फीचर्स सच एज टोपोग्राफी, वहां की टोपोग्राफी कैसी है, प्लेन एरिया है, अनइवन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, सॉइल कैसी है, यस, वहां की क्लाइमेट कैसी है, वहां पे मिनरल्स कौन से अवेलेबल हैं, अगर मिनरल्स वहां पे कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है, मिनरल्स की वहां पे माइनिंग पॉसिबल है कि नहीं है, तो भी वो लोगों की ऑक्यूपेशन उससे रिलेटेड हो जाएगी। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर भी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. अब ये तो हो गया what is land use. अब एक है land use pattern, ठीक है, कि land use pattern कैसा है। अब land use pattern कैसा होगा कि वहां पे humans, अब human भी देख, हमारे पास रिसोर्स है ना,
जैसे हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, जैसे हमारे पास ह्यूमन मेड रिसोर्स है, वैसे ही हमारे पास नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो वो ह्यूमन रिसोर्स एजुकेटेड है, टेक्नोलॉजी वहां पे कितनी डेवलप है, उसका भी फर्क पड़ेगा वहां के लैंड यूज पैटर्न पे। ठीक है, सो लैंड यूज कैन बी ऑल्सो बी, एक तो ये हो गया हमारा लैंड यूज पैटर्न, जैसे आपकी बुक में पिक्चर्स बनी हुई हैं। अब इन पिक्चर्स में क्या है कि पहले यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड थी, ठीक है, पहले एग्रीकल्चरल लैंड थी, उसके बाद धीरे धीरे वहां पे हाउसेस बनना स्टार्ट हो गए, एंड आफ्टर देन देयर आर मोर हाउसेस, buses used to come, more network of transport also develop, and then there also more and more buildings, flats, they are being developed. So there is change in land use pattern. ठीक है, तो लैंड यूज का जो पैटर्न था वो क्या होना शुरू हो गया, चेंज। उसके लिए कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते थे, एक तो ह्यूमन और एक वहां पे टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमंस की डेवलपमेंट हुई, पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो ये सारी चीजें लैंड यूज पैटर्न पे भी इनका असर हुआ। तो अब इसके बाद है लैंड की क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि लैंड की ऑनरशिप, ऑनरशिप ऑफ लैंड। अब लैंड की ऑनरशिप कैसी होती है, वन इज प्राइवेट एंड अदर इज कॉमन। एक तो पब्लिक भी होती है, ठीक है, एक प्राइवेट कह सकते हो, गवर्नमेंट की होती है, एक कम्युनिटी भी होती है, जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस ने या कुछ ग्रुप्स ने इकट्ठे होकर बना दी है। ठीक है, सो लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। ठीक है, कम्युनिटी लैंड को हम पब्लिक भी बोल सकते हैं। सो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, प्राइवेट किसकी होगी, इंडिविजुअल की होगी, और कम्युनिटी लैंड किसकी होगी, मे बी ऑफ गवर्नमेंट और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दे आर यूजिंग दैट लैंड टुगेदर। ठीक है, जैसे एक विलेज ने एक लैंड सभी लोगों ने इकट्ठी रख ली है एंड दे आर यूजिंग देयर लैंड कलेक्टिवली। ठीक है, तो वो उनके कम्युनिटी लैंड हो गई। एंड कम्युनिटी लैंड फॉर द कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, कि सभी जो भी अपना पशुओं के लिए फॉडर वहीं पे लेने जा रहे हैं, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, फ्रूट्स वगैरह के लिए, पूरे विलेज के लोग वहीं पे जा रहे हैं, तो वो कम्युनिटी लैंड उन्होंने बनाई थी। So people and their demands are ever growing. अभी पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनकी डिमांड्स इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लेकिन ये हमारी लैंड क्या है, ये लिमिटेड है ना, लैंड लिमिटेड है, लैंड यूज जो है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारी, क्योंकि सारी जरूरतें ही लैंड के ऊपर है ना, और जितने भी हमारे यूज है वो सारे लैंड से ही फुलफिल होती हैं, मोस्टली डिमांड्स, तो इसलिए हमारी जो लैंड के ऊपर बर्डन है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड द क्वालिटी ऑफ लैंड इज ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्वालिटी ऑफ लैंड तो डिफर करती है, ठीक है, बहुत सारे रीजन है, वो उससे क्वालिटी ऑफ लैंड भी डिफर कर जाती है। हाँ जी तन्मय, व्हाई द डिमांड फॉर लैंड इज इंक्रीजिंग, why the demand for land is increasing? Yes, हाँ जी, why? He has given now answer, due to more population. As the population is growing, so the demand for land is also increasing. Although we know कि land is limited, हमें पता है कि लैंड लिमिटेड है, फिर भी ठीक है, सो पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स। तो पहले जो उन्होंने कॉमन लैंड्स रखी हुई थी तो उनपे भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसको यूज में लाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसको भी उन्होंने यूज में लाना शुरू कर दिया। सो दैट इज व्हाई पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउस कॉम्प्लेक्सेस बनाने शुरू कर दिए अर्बन एरियाज में, कि जो लैंड पहले उन्होंने कम्युनिटी लैंड बनाई हुई थी, खाली रखी हुई थी, उसको भी उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, बिकॉज एवर ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर नीड्स। ठीक है, एंड देयर डिमांड्स। यस यस, एक तो उन्होंने वहां कम्युनिटी लैंड को यूज करना शुरू कर दिया, कम्युनिटी लैंड में अगर फॉरेस्ट है उनकी कटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, उससे क्या की डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दी,
तो लैंड यूज पैटर्न, तो जो लैंड यूज पैटर्न था पहले जहां पे एग्रीकल्चर थी, फॉरेस्ट थे, तो वो लैंड यूज चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। यस, अर्लियर जो फॉरेस्ट एरिया थे अब वो किस में बन गए, न्यू अर्बन एरिया। अभी भी आप देख रहे हो कि कई नई नई कॉलोनीज बन रही हैं, ठीक है। जो सारा एग्रीकल्चर एरिया वहां को साफ किया जा रहा है एंड देयर न्यू कॉलोनीज आर बीइंग कट, न्यू मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर बीइंग मेड, ठीक है, नई नई बनाई जाती हैं। तो वो अर्लियर डेड लैंड, इवन की फर्टाइल लैंड को भी कई बार यूज कर लिया जाता है, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो दैट इज व्हाई so common land to build the commercial areas, house complex in urban areas and to expand the agricultural land in rural areas, और rural areas में जो agricultural land है उसको भी use कर लिया जाता है। And today the vast changes in land use pattern also reflect the cultural changes in our society। अब ये जो land use pattern है कि land किस purpose के लिए use हो रही है, तो जैसा लोगों का कल्चर है वैसे ही वो वहां पे बिल्डिंग्स भी बनाएंगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सो दीज आर द मेजर थ्रेट्स। अब इस लैंड यूज के लिए कुछ हमारे पास थ्रेट्स भी हैं, हमारे चैलेंजेस भी हैं इस लैंड यूज के लिए। वो थ्रेट्स क्या हैं, क्योंकि जैसे जैसे लैंड का यूज बढ़ रहा है, ठीक है, लैंड यूज इंक्रीजिंग, इट्स डिमांड इज इंक्रीजिंग, मोर पीपल दे आर ऑल्सो इंक्रोचिंग द कम्युनिटी लैंड्स, so there is more land degradation, कि कई बार फर्टाइल लैंड को भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है, या उसकी सॉइल की फर्टिलिटी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे वो डिग्रेड हो रही है। एंड लैंडस्लाइड कई बार हो जाते हैं, उसकी वजह से भी वो लैंड यूज जो है वो पैटर्न चेंज हो जाता है। देन सॉइल इरोजन है, डेजर्टिफिकेशन है, डेजर्टिफिकेशन की जो फॉरेस्ट हम कटिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे फर्टाइल लैंड है वहां पे हम उसको यूज नहीं कर रहे, जो लेस फर्टाइल है वो खाली पड़ी है, ज्यादा फर्टाइल यूज हो रही है, तो जहाँ पे फॉरेस्ट उगाने चाहिए वो हम नहीं उगा रहे। डिफोरेस्टेशन तो करते जा रहे हैं, कटिंग तो करते जा रहे हैं, लेकिन जितने प्लांट हमें लगाने चाहिए, जितने हम कटिंग कर रहे हैं उतने लगा नहीं रहे, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन भी है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है एरियाज की, एंड दीज ऑल आर मेजर थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट। और बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी हैं, तो इसलिए किसकी जरूरत है हमें, अगर ये हमारे पास थ्रेट्स हैं तो इन थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये हमारे सामने थ्रेट्स हैं, हमें पता है कि लैंड यूज हम क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड हमारे लिए। लैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसके बहुत यूजेस हैं, जितनी हमारी मोस्ट ऑफ द डिमांड सारी ही लैंड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और लेकिन लैंड हमें पता है कि लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, लैंड यूज का पैटर्न इंक्रीज हो रहा है एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड द डिमांड्स द यूज लैंड यूज पैटर्न, इट इज ऑल्सो कॉजिंग वेरियस थ्रेट्स, बहुत सारे थ्रेट्स भी हमारे सामने लेके आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू नाउ, कंजर्वेशन ऑफ दिस लैंड रिसोर्स। हमने क्या करना है, इस लैंड रिसोर्स को कंजर्वेशन करनी है इसकी। सो हाउ इट कैन बी कंजर्व, कैसे कर सकते हैं। यस, हाँ जी, यस, यू हैव नो आइडिया टू कंजर्व योर लैंड, बट यू कैन डू, what you can do, that are already building है ना, yes, जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे बना रहे हैं, बट वी वांट टू लिव इन आवर सेपरेट हाउस है ना, तो हम इसलिए नहीं वहां पे बना रहे। ओके, व्हाट यू कैन डू टू कंजर्व द नेचर, द लैंड रिसोर्स, और क्या कर सकते हो, जैसे अभी हमने बात की कि थ्रेट्स क्या है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है एरियाज की, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं। लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं, लैंडस्लाइड आपने पिछले डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि जो फॉरेस्ट की होती हैं, यस, जो उनकी रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, बट व्हेन द डिफॉरेस्टेशन इज डन, सो देन वहां पे सॉइल की जो मजबूती है वो नहीं रहती, स्ट्रेंथ नहीं रहती, एंड लैंडस्लाइड्स यूज्ड टू हैपन इन माउंटेनियस एरिया, ठीक है। तो वो भी हमारा, तो अगर वहां पे है तो वो हमारे लिए एक थ्रेट है, हमारे लिए क्या चैलेंज है,
कि हमने कैसे इसको ओवरकम करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है। वी यूज टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और हम क्या कर सकते हैं, यस, फर्स्ट वी कैन डू, थ्रेट क्या है, थ्रेट है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन, और इस थ्रेट को हम ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, यस, बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। कैसे हो रहा है, बिकॉज व्हेन वी आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स देन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज आल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है। सो वी शुड रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो हमें उन केमिकल्स का भी यूज जो है वो रेगुलेटेड करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको लैंड को ही बचा के रख रहे हैं ना, जो लैंड की फर्टिलिटी है अगर हम उसको बचा के रख रहे हैं। हाँ जी, ओवरग्रेजिंग, यस, अवॉइडेड, ठीक है। ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना, केमिकल फर्टिलाइजर्स। यस, वी कैन यूज नेचुरल मैन्योर। और क्या करके, मार्चेस करके, अवेयरनेस क्रिएट करके, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ओवर ग्रेजिंग, अब जैसे हमने पहले बात की थी कि कम्युनिटी लैंड रखी होती है ना, कम्युनिटी लैंड में दे गेट द फॉर्डर फॉर देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स के लिए फॉर्डर लेते हैं। तो अगर एनिमल्स को जहाँ पे उनकी ग्रेजिंग करने के लिए लेके जाते हैं, जैसे शीप्स हो गए, गोट्स है, जिन्होंने भी एनिमल्स रखे होते हैं, तो अगर वहां पे वो ओवर ग्रेजिंग करेंगे, तो ओवर ग्रेजिंग से क्या होगा कि वो उनकी रूट्स तक भी खींच लेते हैं फिर, है ना। तो वो क्या होगा, वहां से वो लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगी, जो बाद में सॉइल इरोजन का भी रीजन बनेगी, ठीक है। तो इसलिए ओवर ग्रेजिंग हमारा थ्रेट था। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट्स है ना, वो थ्रेट्स में ऐड करते जाना, ठीक है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इधर भी आ गया, उसका रेगुलेटेड यूज करना है। ओवर ग्रेजिंग अगर इधर है तो हमने ओवर ग्रेजिंग को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। चेक, कीप अ चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। और अवेयरनेस क्रिएटेड, ये भी ऐड कर लो, कोई बात नहीं। और यस, लैंड रिक्लेमेशन, कि हमने लैंड को, कि कौन सी लैंड फर्टाइल है उसको यूज के लिए रहने देना है, प्रॉपर उसका हमने सर्वे करके उसके अकॉर्डिंगली हमने यूज करना है। देन तो दिस इज ऑल अबाउट लैंड रिसोर्स, ठीक है, कि लैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जो लैंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है हमारे लिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स, व्हाई लैंड इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स, रेज योर हैंड। यस अकुल, land is required for our survival, and if you have to add more points how land is useful or how land resource is very important for us. Without land, there will be no You can use all the land use, जो भी uses of land है, whatever the uses of land we have discussed, so you can write all those uses. So land is very important resource. We can use land for agriculture. The industries they are made on agriculture, ठीक है. The transportation that is also possible on agriculture. We use land for various purposes. So all those points come in the land importance. वो land importance में आ जाएंगे, तो land use के points हैं, ठीक है. तो why we should land judiciously, जो land use है हमें उसको जुडिशियसली क्यों यूज करना है, बहुत मतलब केयरफुली क्यों यूज करना है. रेज योर हैंड. हाँ जी, बिकॉज लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने जुडिशियसली क्यों यूज करना है, व्हाट इज द नीड. ऐसे हम जो हमारे पास मन करता है एरिया हम वैसे यूज कर लेते हैं, ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है. बिकॉज वी हैव ओन जस्ट लिमिटेड लैंड, और उसी लिमिटेड लैंड को हमने अपनी सभी की जरूरतें पूरी करने के लिए यूज करना है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज लैंड जुडिशियसली एंड वी देयर इज नीड फॉर इट्स कंजर्वेशन.
इसीलिए इसकी कंजर्वेशन की भी हमें जरूरत है। हाँ जी बेटा, वो तो हो गया ना कि आपने ऐड कर दिया ना पॉइंट, क्रिएट अवेयरनेस, है ना, तो वो हम अब दूसरों में भी कंजर्वेशन की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, community land that is owned by group of individual या कोई गवर्नमेंट की भी हो सकती है कम्युनिटी लैंड। ठीक है, प्राइवेट की जो एक प्राइवेट पर्सन की है। हाँ जी बेटा, पार्क, यस, पार्क इज आल्सो पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के पार्क्स हैं। और जैसे कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे कुछ एनजीओ वगैरह है, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बनाई होती है जहाँ पे हर कोई जा सकता है ना, वो प्राइवेट नहीं होती। प्राइवेट है जैसे आपका घर, अगर आपके घर में कोई आएगा तो पूछ के आएगा, लेकिन अगर कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग है तो कम्युनिटी बिल्डिंग में कोई भी जा सकता है ना, वो चाहे गवर्नमेंट की हो या कम्युनिटी किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। ठीक है, एनी अदर डाउट? सो नाउ यस, अगर लैंड की फर्टिलिटी एक बार चली जाती है तो उसको दोबारा रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने इसमें ये भी लिखा कि ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी, ना ही केमिकल यूज का ज्यादा यूज करना। वी हैव टू चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग एंड रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आल्सो। ठीक है, एनी अदर डाउट? So the next, that is soil. So that soil we will continue tomorrow. Yes, so read all the land resource and the next also. ठीक है, जो next resources है उनको भी थोड़ा सा read करना है, okay?